अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा. Now we are going to start our novel, The Adventures of Sherlock Holmes. The last story in it is The Red-Headed Men's Club. Your homework, half of your English A homework is based on this story, so we have to read the story first. Hurry up, beta. Open your books. The Red-Headed Men's Club. This is the story about a club which was formed by the red-headed men. The red-headed men means the men with red hair. The club was formed by the men who were all with red hair. And this is about a confusion, a problem, and then it lasts to a crime, which was being stopped by Sherlock Holmes. Now, I'm going to start its first part. This is the story written by Dr. Arthur Conan Doyle. The first part is about Mr. James Wilson. One day last autumn, I visited Mr. Sherlock Holmes and found him talking to a small fat man with bright red hair. अब इस स्टोरी में व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी का स्टार्ट कैसे है कि डॉक्टर वॉटसन इज डिस्क्राइबिंग द स्टोरी. हु वाज डॉक्टर वॉटसन? डू यू रिमेंबर? द मेन कैरेक्टर्स, द मेन डिटेक्टिव इन द स्टोरी इज Sherlock Holmes. Sherlock Holmes is the main character of the story and Dr. Watson is his assistant. Sherlock Holmes, along with his assistant, Dr. Watson, tries to solve the crimes and he detects about different crimes. In this story, Dr. Watson tells us that one day when I visited Sherlock Holmes, I found him talking to a small fat man with bright red hair. अब एक red hair man से Sherlock Holmes बातें कर रहे थे and Sherlock Holmes ने क्या उसको reply किया? You have come at just the right time. Just the right time? Right time mean the proper time, the appropriate time, कि तुम बिल्कुल करेक्ट वक्त पे आए हो, करेक्ट टाइम पे आए हो. दिस इज मिस्टर जेम्स विल्सन. अब उसने उस रेड हेयर मैन का, शर्लक होम्स ने उस रेड हेयर मैन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि दिस इज मिस्टर जेम्स विल्सन एंड ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल. Mr. Wilson, this is my friend Dr. Watson who has helped me many times. Please begin your story. Again, so both Dr. Watson and I can hear it. और अब उसने Sherlock Holmes ने उस आदमी से जो रेड हेयर मैन से कहा, मिस्टर जेम्स विल्सन से कहा कि आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्टोरी को दोबारा डिस्क्राइब करो सो दैट कि मैं भी दोबारा सुन सकूं और डॉक्टर वॉटसन भी इसको सुन सके, बिकॉज हम मिलकर ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे. अब उसका प्रॉब्लम क्या था जो वो लेके एक डिटेक्टिव के पास पहुंचा. Now read about the problem. Problem क्या था? The man took out a newspaper from the inside pocket of his coat. उस शख्स ने अपने कोट की इनसाइड पॉकेट से एक न्यूज़पेपर निकाला और उस न्यूज़पेपर में उनको एक एड दिखाया. He was wearing dark colored trouser, a black jacket, and there was a hat on the chair at his side. He went through the newspaper carefully. अब उसने न्यूज़पेपर को केयरफुली पढ़ा. क्यों पढ़ा? बिकॉज उसमें से वो कोई चीज उनको ढूंढ के दिखाना चाहता था. टू फाइंड समथिंग. देन ही लुक्ड अप. और जब वो मिल गई, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, सर उठा के ऊपर उनकी तरफ देखा. यस, हियर इट इज. This is how it started. Read this for yourself. I took the newspaper for him and read. अब उसने डॉक्टर वॉटसन ने वो न्यूज़पेपर लेकर पढ़ा. यानी वो चीज जो वो उनको दिखाना चाह रहा था वो क्या था? दैट वॉज an ad in the newspaper. अब ये ad क्या था? To the members of the red-headed men's club, following the wish of Ezekiel Hopkins of Lebanon, Pennsylvania, USA, we are now looking for another person to become a member of the red-headed men's club.
अब उसमें क्या था, उसने जो डिस्क्राइब किया था एड में कि रेड हेडेड, ये एड किसके लिए है? टू द मेंबर्स ऑफ द रेड हेडेड मेंस क्लब, रेड हेयर मैन क्लब के मेंबर्स के लिए, कि उस क्लब का जो फाउंडर था एजिकाय हॉपकिंस, हॉपकिंस की विश पे, उसकी विश मीन डिजायर, ख्वाहिश, विश मीन विल, डिजायर, एजिकाय हॉपकिंस की ख्वाहिश के मुताबिक अमल करते हुए वी आर नाउ लुकिंग फॉर अनदर पर्सन, हम एक और नए मेंबर की तलाश में हैं जो रेड हेडेड मेंस क्लब का मेंबर बन सके। अब ये रेड हेडेड मेंस क्लब क्या था? रेड हेडेड मैन क्लब एक शख्स जिसकी डेथ हो गई थी, एजिकाय हॉपकिंस, एजिकाय हॉपकिंस हु वाज ऑफ लेबनान, पेनिसिल्वेनिया, यूएसए, वो यूएसए का सिटीजन था, और उसकी डेथ के बाद उसकी ख्वाहिश पर एक रेड हेडेड मेंस क्लब बनाया गया था, और अब उसका कहना था कि इस क्लब में एक और नए मेंबर की तलाश है। द मैन हु बिकम्स, अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था उस क्लब के लिए? द मैन हु बिकम्स अ मेंबर ऑफ द क्लब विल गेट 4 pounds a week for very easy work, के जो भी इस क्लब का मेंबर बनेगा उसको 4 pound पर मंथ मिलेंगे, 4 pound पर वीक मिलेंगे, यानी एक हफ्ते में 4 pounds। ये उस टाइम्स में एक बड़ी अमाउंट थी। अभी भी आपको पता है पाउंड डॉलर से भी महंगा होता है, और एक शख्स को बैठे बिठाए एक बहुत इजी वर्क के लिए, बहुत आसान काम के बदले में चंद घंटे आसान काम करके उसको 4 pounds मिल रहे थे, तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन थी। ऑल रेड हेडेड men who are strong and healthy and above the age of 21 years can try, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि तमाम लोग जिनकी रेड हेयर हैं और उनकी एज अबव 21 है, they are strong and healthy, they can come and contact to become the member of this red-headed men's club. Please come on Monday at 11 o'clock to see Duncan Rose at the office of the red-headed men's club. और उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया था कि आप इस एड्रेस पे डंकन रॉस ऑफिस ऑफ द रेड हेडेड मेंस क्लब, 7 पॉप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट पे आके अपना इंटरव्यू दें, मतलब आप खुद आके पर्सनली मिलें ताकि सिलेक्शन की जा सके। अब ये एड उसने दिखाया। व्हाट डज इट मीन? आई आस्क्ड आफ्टर आई हैड रेड इट ट्वाइस, ट्वाइस मीन 2 times। अब डॉक्टर वॉटसन ने इस एड को 2 times पढ़ा, और 2 times पढ़ने के बाद 2 times उसको पढ़ने के बाद डॉक्टर वॉटसन ने क्या कहा कि इसका क्या मतलब है, उसे समझ नहीं आई। होम्स लाफ, अब होम्स उसको कुछ समझ आ गई थी। इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज इजंट इट, ऑन व्हाट डेट, अब उसको कुछ समझ आ रही थी। अब उसने होम्स ने, वॉटसन को अभी समझ नहीं आई, लेकिन शर्लक होम्स ने क्वेश्चनिंग करना शुरू की। उसने क्या क्वेश्चन किए मिस्टर जेम्स विल्सन से? ऑन व्हाट डेट डिड यू सी दिस इन द न्यूज़पेपर, कि मिस्टर विल्सन कि आपने ये एड अखबार में, न्यूज़पेपर में ये एड आपने कब देखा? 27 अप्रैल 1890 इन द मॉर्निंग क्रॉनिकल। द मॉर्निंग क्रॉनिकल इज द नेम ऑफ द पेपर, न्यूज़पेपर का नाम है कि इस न्यूज़पेपर में मैंने 2 माह पहले ये न्यूज देखी। गुड, एंड देन व्हाट हैपेंड, और फिर आगे उसने पूछा कि फर्दर इसके बाद क्या हुआ। तब मिस्टर विल्सन ने अपनी डिटेल बताना शुरू की। वो डिटेल क्या थी मिस्टर विल्सन की? एक्चुअली ये स्टोरी मिस्टर विल्सन के ही प्रॉब्लम के बारे में है कि मिस्टर विल्सन उस क्लब के मेंबर बने और फिर वो क्लब सडनली बंद हो गया। क्लब सडनली ना सिर्फ बंद हुआ बल्कि डिसअपियर हो गया। उसके बारे में किसी को कोई नो हाउ नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अनइन्फॉर्म्ड वो बंद हो गया। और मिस्टर विल्सन परेशान थे। उस परेशानी में वो शर्लक होम्स के पास आए ये जानने के लिए कि इसमें क्या राज है कि मुझे 8 वीक्स के लिए एक जॉब ऑफर की गई। मैंने वो जॉब की और मैं वो कर रहा था तो अचानक
वो ऑफिस भी गायब हो गया, जॉब भी खत्म हो गई, एंड नोबडी नोज कि ये क्या था, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, कुछ भी किसी को समझ नहीं आई. सो ही केम टू अ डिटेक्टिव शर्लक होम्स टू नो अबाउट दैट. अब उसने आगे क्या बताया, अपनी डिटेल्स. वेल सर, आई हैव अ स्मॉल शॉप इन कोबर्ग स्क्वायर. अब उसने अपनी डिटेल्स बताई कि मेरी एक छोटी सी दुकान है. उस छोटी सी दुकान में वो क्या करता था, कौन सा बिजनेस है. आई बाय एंड सेल ओल्ड क्लॉक्स, कि मैं पुराने क्लॉक्स और नए क्लॉक्स खरीदता हूँ. बाय एंड सेल ओल्ड क्लॉक्स, कि मैं पुराने क्लॉक्स खरीदता हूँ और उनको रीसेल करता हूँ. आई डोंट मेक वेरी मच मनी रियली, और इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा आमदन नहीं होती. आई यूज टू हैव 2 पीपल वर्किंग फॉर मी, और मेरी शॉप पे मेरे साथ 2 लोग होते हैं जो मेरे एम्प्लॉय हैं, मेरे साथ काम करते हैं. बट नाउ आई हैव ओनली 1, लेकिन अब मेरे साथ एक ही एम्प्लॉय है. I should pay him more, but he is happy to take only half pay. He wants to learn something about business, you see. अब उसने कहा कि नॉर्मली मैं अपनी दुकान पे 2 मुलाजिम रखता हूँ, लेकिन आजकल मेरे साथ एक ही मुलाजिम है जो मेरे साथ वर्किंग कर रहा है, और उसका मैं उसे ज्यादा भी पैसे दे सकता था, लेकिन उसने कहा कि वो हाफ पे पर ही खुश है. यानी वो एक शख्स की पे लेके, एक शख्स की तनख्वाह लेकर 2 लोगों का काम, डबल लोगों का काम करता है. यानी इट मीन्स ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, और ग्रीडी भी नहीं है, और बल्कि अपनी मेहनत से कम मुआवजा ले रहा है. ही वांट्स टू लर्न, और उसके लिए वो रीजन उसको क्या दी है उसने, कि वो काम सीखना चाहता है. ही वांट्स टू लर्न समथिंग अबाउट बिजनेस, यू सी. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस हार्ड वर्किंग यंग मैन. अब शर्लक होम्स ने उससे पूछा कि उस शख्स का क्या नाम है. हिज नेम इज विंसेंट स्पॉल्डिंग. Vincent Spaulding. He is not so very young really, Mr. Holmes. He could get more money working for someone else. अब उसने उसके बारे में बताया कि वो इतना भी यंग नहीं है, मतलब नियरली 30 के करीब होगा, मतलब यंग नहीं है, यंगस्टर नहीं है, टीन एज नहीं है, उससे ज्यादा एज का है. और जितनी मेहनत वो करता है, इतनी मेहनत अगर वो किसी और शख्स के साथ काम पे करे तो उसको उससे ज्यादा मुआवजा मिल जाए. बट ही इज हैप्पी वर्किंग विद मी, लेकिन वो मेरे साथ काम करने पे खुश है. यानी मेरे साथ वो मेहनत भी ज्यादा कर रहा है, 2 लोगों का काम वो अकेले करता है, और पे भी मुझसे हाफ ले रहा है. तो वो तो बड़ा अच्छा, बड़ा मेहनती शख्स है. लेकिन उसकी एक बैड हैबिट है. हिज ओनली बैड हैबिट इज ही लाइक्स टू टेक फोटोग्राफ्स, कि वो फोटोग्राफी का शौकीन है. ही इज फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी. ही लाइक्स टू टेक फोटोग्राफ्स एंड ही प्रिंट्स देम हिमसेल्फ इन अ लिटिल रूम इन द बेसमेंट. और उसने कहा कि वो ना सिर्फ फोटोग्राफी करता है, सिर्फ तस्वीरें लेता है, बल्कि वो उनके प्रिंट आउट भी खुद ही लेता है. प्रिंट्स भी उनके वो खुद ही निकालता है. अब आपको अगर आइडिया हो तो पिक्चर्स जो ली जाती हैं, जो कैमरास में ली जाती हैं, और उनके वो रोल डाल के जो पिक्चर्स ली जाती हैं और उनके प्रिंट पेपर पे जो आते हैं, वो पेपर पे प्रिंटिंग के लिए एक डार्क रूम में काम करना पड़ता है, जहां रोशनी का गुजर ना हो, अंधेरे में. और उसने कहा कि वो मेरे घर की बेसमेंट में वो काम करता है और उनको तस्वीरों के प्रिंट निकालता है खुद से. He is there with his photographs half the day, but he is a good man. And I have a young girl who cooks and cleans for me. You see, my wife has died and I have no family. अब उसने उसके बारे में मजीद बताया कि वो शख्स जो उसका एम्प्लॉय है, विंसेंट स्पॉल्डिंग, वो मेरे घर 2 माह से जॉब कर रहा है, और उसका सिर्फ एक ही शौक है, मेहनती वो बहुत है, लेकिन आधा दिन वो मेरे लिए काम करता है, और हाफ डे वो बेसमेंट में, मेरे घर की बेसमेंट वाले रूम में जाके वो अपनी फोटोग्राफ्स के प्रिंट आउट लेता है. इसके अलावा मेरे घर में एक मेरी मेड है जो कुकिंग करती है और क्लीनिंग करती है, और मेरी वाइफ डाइड है, और आई हैव नो अदर इन माय फैमिली. अब उसके बारे में उसने सारी डिटेल्स बताने के बाद बताया कि ये न्यूज़पेपर में एड मुझे विंसेंट स्पॉल्डिंग, उसके सर्वेंट ने ही दिखाया था.
It was Vincent Spalding who showed me the newspaper. कि ये ad मुझे विंसेंट स्पॉल्डिंग ने ही न्यूज़पेपर में दिखाया था. Look, Mr. Wilson, I wish I had red hair. और उसने मुझे दिखाते हुए, ये अखबार का एड दिखाते हुए उसने मुझे कहा कि काश मेरे भी आपकी तरह रेड हेयर होते. A rich American gave all his money to a red-headed men's club when he died, and now they are looking for new members. और उसने बताया कि एक रिच अमेरिकन एज़ेकियल हॉपकिंस ने अपनी सारी मनी एक क्लब को दी अपनी डेथ के बाद, और अब उस क्लब के लोग एक नया मेंबर तलाश कर रहे हैं. Then he told me the club pays its members £200 a year just to go to the club office for a few hours a day. और फिर मजीद उसने मुझे बताया कि ये रेड हेडेड मेंस क्लब के लोग अपने मेंबर्स को एक साल में £2 पे करते हैं सिर्फ चंद घंटों के लिए क्लब ऑफिस जाकर कुछ इजी सा काम करने के लिए. I thought it would be very good for me. और मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. बिकॉज उसने जब मिस्टर विल्सन को ये एड दिखाया उसके सर्वेंट ने, तो उसने सोचा कि हाँ, व्हाई नॉट शुड आई ट्राई, कि मेरे भी रेड हेयर हैं और मैं भी मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ अबव 21. व्हाई शुडंट आई ट्राई माई लक. My business was not making a lot of money. मेरा बिजनेस भी इन दिनों अच्छा नहीं जा रहा था. So I looked at the story in the newspaper. और जाहिर है चूंकि उसका बिजनेस उस वक्त अच्छा रनिंग में नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लक ट्राई करूं, और अगर मेरी सिलेक्शन हो जाए तो मुझे भी चंद घंटों जाके एक इजी काम करने के £200 पर ईयर मिलेंगे. That was a huge amount at that time. It seems that the club was the idea of a rich American, Ezekiel Hopkins. He was a very strange man and red-headed. When he died, he wanted all his money to go to other red-headed men, but they must be Londoners and with really bright red hair. They are the only ones who can be the members of the club. अब उस क्लब का मेंबर बनने के लिए जो शराइत लिखी गई थी, उस क्लब का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो क्या था? मिस्टर हॉपकिंस ने जो उसके लिए क्राइटेरिया रखा वो क्या था? ही वांटेड हिज मनी, ऑल हिज मनी, के उसकी सारी मनी उसकी डेथ के बाद रेड हेडेड मैन में जाए, यानी उन तमाम लोगों में जाए जिनके रेड हेयर हों, और वो सब दे मस्ट बी लंदनर्स, यानी वो सब लंदन के सिटीजन हों. दे मस्ट बी द सिटीजन ऑफ लंदन. ये नहीं कि वो लंदन में आके दूसरे इलाकों से माइग्रेट करके आके रह रहे हो, बट दे मस्ट बी लंदनर्स एंड विद रियली ब्राइट रेड हेयर. They are the only ones who can be the members of the club. और अब मिस्टर विल्सन ने बताया, so I said to Vincent Spalding कि मैंने सोचा this is just for me, कि ये बिल्कुल मेरे ही लिए है. My hair is the right color and I come from London. Let's go to the red-headed men's club office and see. और उसने कहा कि मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे लिए ही है, बिकॉज मेरे हेयर भी राइट कलर के उसी bright red hair हैं, and I am also a citizen of London. Let's go to the club office and see what happened. So we closed the shop for the day. अब हमने इसलिए दुकान बंद की and went to find the red-headed men's club office. और वो उस ऑफिस में गए, उस एड्रेस पर पहुंचे. Well, Mr. Holmes, when we reached the place, और उसने आगे बताया कि जब हम उस जगह पहुंचे तो हमने देखा the street was full of red-headed men, कि वो गली जहां उन्होंने उस ऑफिस का एड्रेस दिया था वो जगह सारी लोगों से भरी हुई थी, यानी कि वहां पे बहुत से लोग थे, रेड-हेडेड मैन वहां पर थे और बड़ा रश था. I said to Spalding, this is no good. There are thousands of them here. कि यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं, हजारों लोग यहाँ जमा हो गए हैं. But no, he said, you must try. लेकिन उसने, मेरे सर्वेंट ने मुझे कहा, you must try. And he pushed me up to the front. और उसने मुझे उस
लोगों के रश में मुझे धकेल के वो आगे ले गया. Then we found a door to the back, some stairs, and in a few minutes we were in the office. अब उसका जब उसने कहा कि इतने रश में मेरा जाना बहुत मुश्किल है, तो वो उसको धकेल के आगे की तरफ ले गया और आगे से वो उसे कोई रास्ता पता था उसके सर्वेंट को, विंसेंट स्पॉल्डिंग को, और वहां से वो बैक डोर के जरिए उस ऑफिस में उसको ले गया. जल्दी से बगैर उस रश से गुजरे वो बैक डोर से उस क्लब के ऑफिस में पहुंच गए. Now he describes about the office. There was nothing in the office but 2 chairs and a table. अब उस ऑफिस में और कुछ भी नहीं था. Just that was a simple office with only 2 chairs and a table. There was a red-headed man sitting at the table. और एक red-headed man टेबल पे बैठा था. Videsh man came in. He looked at him closely. Each time he said, "No, he is no good. Next, please." और जब भी कोई वहां आ रहा था, उसने देखा उस रूम में कि जब कोई शख्स एंटर होता वो उसको देखता, और देखते ही उसको बड़े गौर से, he looked at him closely, वो उसको बड़े गौर से देखता और कहता, "No, he is no good." यानी वो उसको मुनासिब नहीं लगता. He is no good mean he is not proper for the job for the member of this club. Next please. और दूसरे बंदे शख्स को, नेक्स्ट पर्सन को आने के लिए अलाउ करता. बट वेन ही सॉ मी ही लुक प्लीज. लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, ही लुक्ड प्लीज, वो खुश हो गया. दिस इज मिस्टर जेम्स विल्सन. अब स्पॉल्डिंग ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, दिस इज मिस्टर जेम्स विल्सन and he wants to be a member of the red-headed men's club. Yes, just what we want. और उसने मुझे देखते ही कहा कि यही वो शख्स है just what we want, सेम वही है जिसकी हमें जरूरत है. Very good. He looked at my hair from the front and the back. और उसने मेरे बालों को फ्रंट से और बैक से मेरे बालों को देखा. Then he suddenly took my hand and said, "You are just the man we want." और फिर उसने अचानक अपनी अप्रूवल देते हुए कहा कि "You are the same man we are looking for, we are wanting for." Then he pulled my hair as hard as he could until I shouted in pain. फिर उसने मेरे बाल पकड़ के खींचे until I shouted in pain, कि मैं दर्द से चिल्ला उठा. And he said, "I'm sorry, I wanted to be sure it was your own hair." कि ये आपके नेचुरल हेयर है, कोई ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं हुई या कोई और कलर वगैरह तो नहीं, मैं देखना चाहता हूँ. Then he opened the window and called down to all the people in the street below. फिर उसने खिड़की खोली और नीचे जो सारे लोग, नीचे जो क्राउड था, उनको आवाज देकर, कॉल डाउन मीन उनको पुकार कर कहा, आवाज देकर कहा, "We have the man we want. You can all leave now." कि अब हमें वो मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी. You can all leave now. There was a loud cry of disappointment as everyone walked away. और फिर जो वहां पे लोग थे वो सब, there was a loud cry of disappointment. Disappointment, you know, मायूसी, कि वो सारे लोग जो वहां जमा थे वो मायूस हो गए. As everyone walked away, और वो मायूसी में वहां से चले गए. Okay, mark here the date. We are going to end here.